Hello students, welcome to the video lecture series for macroeconomics. Since we were discussing about the various methods, today I'll be taking up the last and the final method of measuring national income, that is expenditure method. Now, expenditure method is a method where we are getting the value of national income by adding up all the expenditures, all the spendings which are made on goods and services in a particular period of time. That is year and a year. Now, income can be spent. Now, as we all are aware of कि अगर हम इनकम हमारे पास आती है तो हम कहाँ कहाँ पैसे खर्च करते हैं. तो सबसे पहला हमारे अपने इंडिविजुअल्स कंजम्पशंस के लिए, हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए. नाउ इसके बाद कंजम्पशन के बाद पैसा जो बचता है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स के लिए. नाउ इन्वेस्टमेंट के अलावा फिर पैसा कहाँ खर्च किया जाता है. नाउ वेरियस एक्सपेंडिचर्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट. नाउ दोज आर डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स. Okay, so these are the, like, whenever you'll be talking about expenditure method, you will consider from the angle of expenditures which are made by the individuals of a country. Now, even the people of foreign countries, they are also making expenditure. They buy Indian goods, they make payment for that. And in the same way, people from our country, they buy from foreign countries and they make payment from there for them. Means basically it's the payment which is made for exports and the payment which are made for imports. Now again, again, when we are talking about the various expenditures from the angle of foreign investments, now people, they when we foreign investments, if there is import, then we will be losing our own currency, and when there is export, we will be earning the foreign currency. Now when we add up the following types of expenditures, the total is termed as basically the national income. Now what are the various expenditures? Now point number one, फिर से फटाफट रिवाइज करते हैं. It's an expenditure on consumer goods and services, which can be an individual or in households. Now basically the final consumption expenditure is donated by C. यानी अगर आप अभी लास्ट में हम सम अप करेंगे तो C प्लस I प्लस G प्लस एक्स माइनस एम, ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स माइनस एम, इसको बोलते हैं आपका, दिस विल बी गिविंग यू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्रीज. एंड इसको इसी के ग्राउंड पे हम एक्सपेंडिचर मेथड्स के थ्रू नेशनल इनकम कंप्यूट करेंगे. नाउ पॉइंट नंबर टू इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. नाउ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कर रही है, अपने लोगों के लिए कर रही है, उनकी वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए कर रही है, पेंशन देती है ओल्ड एज को, या आप कह सकते हो एजुकेशन सेस दे रही है, तो ये भी बहुत सारे खर्चे हैं. कंस्ट्रक्शन इंफ्रा बिल्डिंग के लिए खर्च कर रही है. तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड इन द डोनेटेड बाय कैपिटल लेटर जी. Now third is the expenditure by productive enterprise. Now there are various enterprises which are also making an expenditure. They buy capital goods, they buy like आपके stocks और inventories. यानी ये basically revenue, stock and inventories आपके current goods current assets हो जाते हैं, जो कि convertible into cash होते हैं और दूसरे capital goods हो गए. Now, this is called as gross domestic capital formation, GDP, GDCF. GDCF को दूसरे अब्रिवेशन यानी आई से डिनोट करते हैं. कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब वॉट एवर अमाउंट यू आर मेकिंग, सेविंग, दैट इज एक्चुअली इन्वेस्टेड. Now this investments again, they are there in the market in the form of expenditures. और उसी के उसको इसीलिए हम इंक्लूड करेंगे जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कंप्यूट करते हैं. नाउ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड एडिशन टू दी स्टॉक इन्वेंट्रीज. फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब जब फिक्स एसेट्स में आपके पैसे इन्वेस्ट किए गए, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग. एंड दूसरा एडिशन टू स्टॉक और इन्वेंट्रीज, ये आपके बेसिकली करंट एसेट्स हो जाते हैं जो कि डे टू डे प्रोडक्शन एक्टिविटी को मीट आउट करने के लिए किए जाते हैं. Okay, now the fourth category is the expenditure which is made on foreign goods and services of a country exported to other countries, which are called exports, and it is donated by X. We have already discussed about this. And we deduct exports from like expenditure which is made by the people of a country, people of India, for the options for the goods and services which they are buying from other countries. Now this is denoted as M. So thus we calculate the net export. Net export is basically the difference between export and import, x माइनस एम. अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हो सकता हो आपको एक ऑप्शन में सीधे दे दिया गया हो नेट एक्सपोर्ट्स, तो नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. Now, thus we add up all the above four expenditures and we get final expenditure.
जिसको हम बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस. नाउ जीडीपी एट मार्केट प्राइस अगर शॉर्ट में कहा जाए, इट इज बेसिकली सी प्लस जी प्लस आई प्लस नेट एक्सपोज, दैट इज एक्स माइनस एम. नाउ अब हमें क्या मिल गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस. नाउ अगर हमें अब इसी से वैल्यूज निकालनी है जीडीपी के साथ एनडीपी एट मार्केट प्राइस, तो हम क्या करेंगे, वी विल सिंपली डिडक्ट एक्सपेंडिचर, द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नथिंग बट योर depreciation. Now we will get NDP at market price. Rest you all know. We can have a quick revision. Now in this method, when we subtract in net indirect taxes, net indirect taxes means the difference between indirect taxes and subsidies. We get net domestic product at फैक्टर कॉस्ट. यानी एमपी से फैक्टर कॉस्ट के लिए आना हो तो नेट एक्सपोर्ट्स का डिडक्शन करते हैं. नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस टेबल ऑल्सो, ये एक सिंपल वे है कैलकुलेशन का. नाउ ये आपको हम शेयर कर देंगे. नाउ अब सिंस जीडीपी से हम अगर जीएनपी पे जा रहे हैं या चाहे एनडीपी से एनएनपी पे जा रहे हैं, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो हमें करना है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का. नाउ नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड टू like GDP in order to get NNP at factor cost, and this we all know NNP at factor cost is nothing but your national income. Okay, so this is how we will be calculating national income using expenditure method. Now what are the precautions? We have already understood in all the various methods, चाहे वो product method हो चाहे वो आपका income method हो. Now when we are talking about the precautions, सबसे पहला second hand goods. Now second hand goods पे अगर expenditure किए जा रहे हैं तो उस केस में आपको इस सेकेंड जो एक्सपेंडिचर हम सेकेंड हैंड गुड्स पे कर रहे हैं वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज दिस हैज़ ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द ईयर जब वो गुड को जब उस मशीनरी को एक्चुअली खरीदा गया होगा. नाउ नेक्स्ट इज परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स. नाउ जब शेयर्स एंड बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं तो इनके एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे हैं, अगेन इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड. क्यों नहीं इंक्लूड करना है? बिकॉज ये एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं, फाइनेंशियल क्लेम्स हैं. ये किसी क्योंकि मार्केट में फ्लोट कर रहा है ना, अगर शेयर है वो खत्म थोड़ा हो नहीं रहा है. शेयर आज आपके पास है, कल को किसी और के पास होगा, फिर किसी और के पास, तो दैट इज अगेन सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी. दैट इज व्हाई वी आर नॉट इंक्लूडिंग दीज फाइनेंशियल क्लेम्स. नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स. ना अगर गवर्नमेंट कोई ट्रांसफर पेमेंट कर रही है, चाहे वो अनएम्प्लॉयड के बेनिफिट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट सेस देना या बुजुर्गों को ओल्ड एज पेंशन देना, सब्सिडाइज खाना देना, घर देना, तो ये सारी चीज़ों को भी अगैन हम नेशनल इनकम कंप्यूटेशन में इंक्लूड अगैन नहीं करने वाले, क्योंकि ये पैसा ऑलरेडी आपका ही है. हमने ऑलरेडी बात की थी इसके बारे में. आपका ही पैसा है जो टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट के पास आया और गवर्नमेंट ही इस पैसे को यूज़ कर रही है. Now next is expenditure on intermediate goods. तो intermediate goods कौन से goods होते हैं which are yet to be produced, manufactured and आपके काम होना बाकी है. तो उस केस में जैसे फर्टिलाइजर्स हैं या वूल हो गया, कॉटन हो गया, या कोई भी रॉ मटेरियल जिस पे अभी हमें काम करना है, तो अगर हमने इंक्लूड कर लिया तो दिस विल गो फॉर डबल काउंटिंग एंड विल नॉट गेट करेक्ट एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम. Okay, now the greatest difficulty in the measurement of national income in the developing country is the general lack of statistical data. तो अभी तक तो हम नॉर्मल, अभी डिफिकल्टी तो स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल नहीं है, अगर है तो इनएडिक्वेट है, अनरिलायबल सोर्सेज के थ्रू है, जिसकी वजह से हमको एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मिलती. Now again, although the government of various countries, they have tried to establish various institutions which can provide you statistical data. So it can be we need statistical information in regards to agriculture and allied occupation which is dependent on agriculture. And उस केस में even the statistical information regarding the enterprise in the organized sector is sketchy and unreliable. Now there is no accurate information अवेलेबल. अभी इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको अलग अलग उसमें बताया है कि कैसे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है. Now there is no accurate information regarding consumption, investments, expenditure and saving of other rural or urban population. Means बहुत कम लोग हैं जो कि प्रॉपर चैनल के थ्रू, या कह सकते हो कि दे आर फॉलोइंग द फॉर्मेट, बट मेजरली आपको अनअकाउंटेबल सोर्सेज से पैसे हैं और जिसमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए वो इंक्लूड नहीं होते हैं. तो स्टूडेंट, दिस वाज अ ब्रीफ रिव्यू अबाउट द एक्सपेंडिचर मेथड. एनी प्रॉब्लम that can be discussed in our live lectures. Thank you students, thank you for watching.